Good morning to all of you. Myself Vijay Kumar Kondal, lecturer in biology, Government Senior Secondary School, Chambo, District Hamirpur, Himachal Pradesh. Welcome you all in today's biology class. Here let's start with some questions. आज का टॉपिक कुछ क्वेश्चन से शुरू करना चाहूँगा. As we have discussed with you or discussing with you in the previous lectures, something about the nomenclature, the identification, nomenclature and classification of the organism. We have discussed the nomenclature in detail. We have discussed the classification parameter, the taxons we have discussed. हमने nomenclature को डिस्कस किया, क्लासिफिकेशन में टैक्सॉन को डिस्कस किया, कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं थोड़ा सा हमने सीखा. पर मैं आपसे कुछ बात पूछना चाहूंगा. I want to ask some question from you. The question is there. Do you know how we can identify the organisms? How we can identify the organism? हम organism को कैसे पहचानते हैं? Yes, you are saying right. On the basis of their characters. यही आंसर है बच्चों. बिल्कुल. But suppose you are the scientist and you would be the scientist or you will be the scientist. आप आने वाले समय के वैज्ञानिक हैं. Suppose you are discovering some new organism on this earth. You encounter some plant, the animal which you think that it is not studied earlier and it is present on this earth and it is newer one to the world of science, world of biology. ये एक नया organism है. So can you tell me where we can compare newly discovered organism to know their status? कि इनका status है क्या? ये किस पर्टिकुलर किंगडम को बिलोंग करते हैं, किस पर्टिकुलर फाइलम को, क्लास को, किस टैक्सॉन में वे प्लेस किए जाएंगे, क्या आपको पता है? Let us discuss all these things. My dear friends, all the articles or storehouses of information, ऐसी कोई भी चीज, ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन which particularly having the information and regarding to the specimens or organism, the organizations or the articles which have information and specimens which are helpful in the correct identification and classification of organism. ऐसी कोई भी वस्तु, ऐसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर ऐसी इंफॉर्मेशन हो या ऑर्गेनिज्म पहले से उपस्थित हो जो किसी ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन में हेल्प करते हैं, these are called the taxonomic aids because we use them as a tool to identify and classify the organism. ये नए ऑर्गेनिज्म के लिए भी होता है और जो प्रीवियसली एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म है उनको भी अगर हम कंपेयर करना चाहते हैं, उनको भी अगर हम स्टडी करना चाहते हैं. सपोज कि आपको बच्चों पता ही नहीं है कि कोई एक प्लांट आपने ढूंढ लिया है और आपको हो सकता है कि उसके बारे में पहले स्टडी हो चुकी है, लेकिन हम ऐसा समझते हैं कि इसके बारे में पहले स्टडी नहीं हुई है, तो हम कहां से इंफॉर्मेशन लेंगे? वी यूज दीज टैक्सोनॉमिक एड्स. I have divided these taxonomic aids into two parts. We are discussing the first part here. In this particular part, we will discuss the taxonomic aid. One is herbarium. Herbarium क्या होता है? What is herbarium? नाम शायद आपने सुना भी हो. बच्चों कुछ नहीं है, हम अलग अलग जगह से प्लांट्स लेते हैं और उनको हम ड्राई करते हैं. किसी भी जगह से लेंगे, किसी रीजन से लेंगे, फिर उन्हें हम ड्राई करेंगे, फिर हम उन्हें प्रेस करते हैं. प्रेस इसीलिए करते हैं कि जो उनके बीच का जो वाटर है वो इवेपोरेट हो जाए, जो वाटर है वो इवेपोरेट हो जाए और फिर उन्हें सीड्स के ऊपर लगा दिया जाता है. मैं अभी बताऊंगा किस तरह की सीड्स होती है, किस तरह के वो पेपर होते हैं, उनका स्पेसिफिक साइज होता है. ऐसा नहीं कि आप किसी पेपर पे लगा दें. हर्बेरियम के लिए स्पेसिफिक साइज होता है और प्रोसीजर होता है उसको प्रिपेयर करने के लिए. उन सीड्स के ऊपर लगाने का भी एक तरीका है, वो आज हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं. तो व्हाट इज द हर्बेरियम? इट इज नथिंग, इट इज द storehouse of the, see on your screen, it is the storehouse of collected plant specimens that are dried, pressed and preserved on seeds.
देन जब आपने लगा दिया, देन दीज सीड्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सली एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन सिस्टम। हाँ भैया, आप आगे पढ़ेंगे प्लांट किंगडम में, एनिमल किंगडम में, फंजाई में, मोनेराज में, या मैं यूं कहूं मोनेराज में, प्रोटिस्टा में, फंजाई में, प्लांट किंगडम में और एनिमल किंगडम में। व्हेन वी गो थ्रू, यू विल स्टडी द एंड वी विल डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, प्लांट क्लासिफिकेशन, एनिमल क्लासिफिकेशन। तो यहां पे मैं प्लांट्स की बात कर रहा हूं, तो हम बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को फॉलो करते हैं। अगले ही स्लाइड में आपके पास आएगा, कुछ एक स्लाइड्स के बाद प्रोसेस में। बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन सिस्टम के अनुसार हम इन्हें सिस्टमैटिक वे में रखते हैं, इन सीड्स को भी, जिससे कि इजियर हो जाए। एक तरीका बना देते हैं जिससे इजियर होता है। हमें पता है कि इस सिस्टम के अनुसार हमें इन सीड्स को ढूंढना है। And then we will compare the newer plant which we have taken from the field with the older existing plant on the seed. It means they are used as a ready reference in scientific studies. ये पहले से उपस्थित हमारे पास रेफरेंसेस के रूप में होते हैं। Now see here, what kind of the seeds are these? My dear friend, this is the herbarium seeds, which is prepared by myself. So मेरा नाम मैंने इस पे लिखा है for my PhD work. देखिए जो हर्बेरियम सीड्स होती है बेटा, इट इज हैविंग द स्पेसिफिक साइज। इट इज 29 by 41 सेंटीमीटर। आइदर दिस स्टैंडर्ड साइज इज देयर, आइदर द सेकेंड साइज इज 30 by 45 सेंटीमीटर। 30 by 45 सेंटीमीटर। हम इस पे प्लांट को माउंट करते हैं, जैसे मैंने किया हुआ है। माउंटेड प्लांट स्पेसिमेन आई हैव रिटन ऑन द स्क्रीन। देन देयर इज अ प्रिंटेड लेवल। प्रिंटेड लेवल का भी साइज है। It should be 7 by 12 centimeter. 7 by 12 centimeter it is. The size must be that. साइज इतना ही होना चाहिए बच्चों। और इसके ऊपर बहुत इसकी डिस्क्रिप्शंस होती हैं। इस प्लांट को एक नंबर दिया जाएगा जो मेरे हर्बेरियम का है, ठीक है। किसी तरह से अलग अलग हर्बेरियम के जो प्लांट स्पेसिमेन नंबर होते हैं, उनका डिटेल है, किस लोकेलिटी से है, किस उनकी डिस्क्रिप्शन क्या है, बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन क्या है, व्हाट काइंड ऑफ स्टेम दे हैव। Every description is present on this particular list. What is their distribution? Place of collection, collector's name, वो आपको सब कुछ मिलेगा। वो इस सीट पे लिखा जाता है। और इन सीट्स को बच्चों क्या किया जाता है, जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड क्लासिफिकेटरी सिस्टम है, क्लासिफिकेशन सिस्टम है, जो कि मैंने बेंथम एंड हुकर का इन केस ऑफ प्लांट्स बताया, उसमें उनको रखा जाता है उस सिस्टम के अनुसार। फिर नए लोग जाते हैं और उसको स्टडी करते हैं। Let us see now that how these herbariums, what is the process to prepare them? इनको कैसे बनाया जाता है। आप देखिए, जब हमने इन सीड्स को लिया, उस यूनिवर्सल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अनुसार हमें इन्हें अलमीराज में स्टोर करते हैं। और यूजली नाउ मेटल अलमीराज दे आर यूज्ड, और इनके अंदर रख दिया जाता है। और समय समय पर इनको फंजीसाइड और प्रिजर्वेटिव के द्वारा इन्हें बचाया जाता है फंगस से या अदर काइंड ऑफ इन्फेक्शन से, जिससे कि वो खराब ना हो जाए, क्योंकि ये तो रेडी रेफरेंसेस हैं और दे मस्ट बी केप्ट फॉर द फ्यूचर यूज। सो इनको अलमीराज में रख देते हैं। देन सी हियर, थोड़ा सा आपको हिस्ट्री के बारे में बता दूं। इट इज ल्यूकागिनी। ल्यूकागिनी, ही वाज द फर्स्ट मैन हु प्रिपेयर्ड द हर्बेरियम फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड। और बाद में पूरे यूरोप में इनके जो स्टूडेंट्स थे, उन्होंने इस हर्बेरियम प्रेपरेशन को स्प्रेड किया। बट लुकागिनी, ही यूज्ड टू प्रेस द प्लांट्स एंड देन स्यू देम इन द ऑन द सीड्स। उनको वो सी देते थे। अब वो प्रोसेस नहीं है। इस सीड के ऊपर प्लांट्स को रखने का जो प्रोसेस है बेटा, उसे माउंटिंग कहते हैं। माउंटिंग ऑफ द प्लांट ऑन द हर्बेरियम सीड, वो भी आप सीखेंगे। लेट अस सी on the next slide. We need some tools for the herbarium preparations. See here, अगर आपको प्लांट कहीं से उखाड़ के लाना है तो you require the digger, जिसे हम कुदाली अपनी भाषा में बोलते हैं, इस तरह का डिगर चाहिए। हमें कोई स्टेम काटनी है तो कटर चाहिए बेटा। हमें फोटोग्राफ लेना है तो कैमरा चाहिए बेटा। हमें रिकॉर्ड करने के लिए नोटबुक, पेन और पेंसिल्स की जरूरत पड़ती है बेटा। रिकॉर्ड करने के लिए बातों को कि किस लोकेलिटी का, किस प्रकार का एनवायरनमेंट है, कैसे कैरेक्टर आपने देखे, वो सारा आप नोट करेंगे अपनी फील्ड नोटबुक के ऊपर। दिस इज द फील्ड नोटबुक। देन मेजर करने के लिए स्केल आपके पास चाहिए या मेजरिंग टेप आपके पास चाहिए। जो प्लांट स्पेसिमेन आप लाते हैं, कहीं से इकट्ठा करते हैं, उसे आप फिर पॉली बैग्स में रखते हैं। वी रिक्वायर द अल्कोहलिक सोल्यूशन, कोपेनहेगन सॉल्यूशंस फॉर प्रिजर्वेशन,
and storage jar be required. Okay, so some of the tools are there, you will see on this slide. इस slide के ऊपर आप देख सकते हैं. Then see, very important is this is the plant press. जो plant आप लाए उन्हें फिर आप कैसे प्रेस करते हैं, कैसे दबाते हैं. यूजली प्रोसेस रहता है कि न्यूज़पेपर में लाया जाता है, न्यूज लाते हैं और न्यूज़पेपर के अंदर 2 फोल्ड के बीच में रख देते हैं, फिर उन्हें लकड़ी के बने हुए प्रेस होते हैं उनके बीच में रख देते हैं, फिर स्टेप लगा देते हैं और कस के उन्हें बांध देते हैं और फिर 48 आवर्स के बाद ही हम इसे खोल पाएंगे. इस तरह का प्रोसेस अभी हम आगे डिस्कस करेंगे. पर दिस इज द वन मोर टूल विच इज द प्लांट प्रेस हियर. नाउ सी व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ हर्बेरियम प्रिपरेशन माय डियर फ्रेंड्स. करना क्या है, जैसे मैंने बोला पहले तो ये करना है आपको कि यू मस्ट गो टू दैट फील्ड. बच्चा आप कहां जाएंगे बच्चों, फील्ड में जाएंगे. किसी भी पर्टिकुलर फील्ड बोला जिस एरिया में आपको प्लांट लगते हैं, और वहां पे आप जाएंगे. यू रिक्वायर द फील्ड विजिट एंड स्पेसिमेन कलेक्शन. आपने अगर स्टेम काटनी है तो आप कटर से, अगर आपने डिग करके निकालना है तो आप उसको डिगर से करेंगे, खुदाई करके निकालना पड़ेगा. आप प्लांट को ले लेंगे, साफ करेंगे और उसको ले आएंगे घर. उसके बाद मैंने बोला कि पॉली बैग्स में ही लाएंगे आप, या इसके साथ एक बेस्कुलम का यूज मैं आगे आपको बताऊंगा अभी अगली स्लाइड में. या जो आपने फ्रेश प्लांट लिया हुआ है मैं आपको यहां पे बता दूं, दिस इज द कलेक्शन ऑफ प्लांट बाय यू. आप उसको कलेक्ट करेंगे. और दिस इज द वास्कुलम, वन मोर टूल फॉर द हर्बेरियम प्रिपरेशन. एंड दिस वास्कुलम के अंदर आप उसे डाल देंगे जिससे वो सूखे ना, और वास्कुलम को आप क्लोज कर देंगे बच्चों. तो फर्स्ट स्टेप इज माय डियर फ्रेंड्स, इट इज फील्ड विजिट एंड स्पेसिमेन. देन सेकंड वन इज प्रेसिंग एंड ड्राइंग. हम पढ़ेंगे एक एक करके. उसको प्रेस करना, उसको दबाना और उसको सुखाना. उसके बाद माउंटिंग ऑन हर्बेरियम सीट. जैसे मैंने बोला कि हर्बेरियम सीट 29 बाय 41 सेंटीमीटर और 30 बाय 45 सेंटीमीटर इन साइजेस को आप याद रखेंगे, बिकॉज दीज आर स्टैंडर्डाइज्ड साइज. इनसे कम और बड़ी नहीं ले सकते हैं. माउंट करेंगे, उसको रखेंगे उसके ऊपर. फिर उसकी प्रिजर्वेशन कैसे किया जाता है, जो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप फ्रूट को तो आप प्रिजर्व वैसे कर ही नहीं पाएंगे सीट के ऊपर, आप ड्राई नहीं कर पाएंगे बच्चों, तो उसको कैसे रखा जाएगा, उसको पॉली बैग्स के अंदर रख देते हैं. वो आगे मैं आपको बताऊंगा, डिटेल में हम डिस्कस करने जा रहे हैं. देन प्रिजर्वेशन इज देयर. उसके बाद सीट पे लेवलिंग किया जाता है. लेवलिंग में सारी डिटेल लिखी जाएंगी. और आफ्टर दैट व्हेन वी हैव लेवल्ड, उसको बैग्स में, पॉली बैग्स में डाला जाता है. एंड दैट विल बी प्रॉपर्ली स्टोर्ड इन द अलमीराज, इन द स्टोर हाउस. एंड दिस पर्टिकुलर स्टोर हाउस इज कॉल्ड हर्बेरियम. उसे हर्बेरियम कहा जाता है बच्चों. तो सी वन बाय वन. द फर्स्ट स्टेप इज फील्ड विजिट एंड स्पेसिमेन कलेक्शन, जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया. आप प्लांट्स को लेंगे, जो भी पार्ट आपको प्रिजर्व करना है, बस तो कंप्लीट प्लांट लिया जाता है. अगर बड़ा है तो उसके स्टेम को अलग से कट किया जाएगा. पर कोशिश ये की जाए कि आप सारे पार्ट्स को ले लें, फ्लावर्स को ले लें, लीव्स को ले लें, स्टेम को ले लें, रूट को ले लें, कि बाद में आप उन कैरेक्टर्स को कंपेयर कर पाए. यू शुड take these all the parts and then put in the basculum and then take them to the home or your lab, your laboratory, जहां पे आप काम करते हैं वहां पे इसे ले जाएंगे. Then pressing and drying my dear friends. देखिए मैंने बोला कि they must be between the folds of the newspaper, old newspaper or blotting papers. Blotting paper जिसके अंदर पानी जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है. कैसे रखना है, अगर कोई बड़ा स्पेसिमेन है तो उसको कैसे फोल्ड करना है, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. देयर आर 2 फोल्ड शेप्स, वन इज एन और वन इज डब्ल्यू. अगर एक थोड़ा बड़ा है तो आप उसे एन शेप में, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि अगर कोई प्लांट है तो अगर वो मीडियम साइज का तो आप एन में कर लीजिए, अगर वो बहुत बड़ा है तो इट मस्ट बी इन डब्ल्यू. These are the shapes for the pressing and drying of the plants of the larger size. Then blotting seeds with the plant specimen should be placed in plant press. फिर plant press में रख दीजिए, जो मैंने आपको बताया था plant press, उसके अंदर रख देंगे. और आप इसे 24 to 48 आवर के बाद ही इस प्रेस को खोलेंगे, जिससे वो पूरी तरह से, क्योंकि हमने उसके ऊपर फोर्स लगाई होती है, स्टेप से लगाया होता है और फोर्स लगी होती है, तो इसलिए वो अपना एक साइज, अपना एक शेप ले लेगा. उसके बाद आपने इसको एक्सपोज नहीं करना होता है सन में, इसको वैसे ही इसको जो लो टेम्परेचर पे इसको ड्राई होने देते हैं. क्लियर. देन सी माउंटिंग ऑन हर्बेरियम सीड. अब आपका जो प्लांट है वो सूख चुका है, जो स्पेसिमेन है आपका प्लांट स्पेसिमेन है वो सूख चुका है. फिर आप जो है वो पर्टिकुलर साइज 41 बाय 29 सेंटीमीटर, इधर 30 बाय 45 सेंटीमीटर सीट पे ले लेंगे और आप उसे वहां पे लगा देंगे, आइदर विद ग्लू, गोंद के साथ, या एडेसिव
किसी पर्टिकुलर एडिजिव या सेलो टेप के साथ आप उसके ऊपर चिपका देंगे। मैंने पहले भी बोला, जो बल्कि पार्ट्स होते हैं जैसे फ्रूट, सीड्स, कोन्स, आप इन्हें कहाँ लगाएंगे बेटा? दे आर नॉट प्रेस्ड, नहीं तो टूट जाते हैं। दे मस्ट बी पुट इन स्मॉल एनवल्प्स, उनको छोटे छोटे लिफाफों में रखा जाता है। एंड दीज आर कॉल्ड द फ्रेगमेंट पैकेट्स, इन्हें फ्रेगमेंट पैकेट्स कहा जाता है। सकुलेंट प्लांट जैसे एलोवेरा, वो तो सूखेगी नहीं जल्दी, तब तो मुश्किल है। तो एलोवेरा जैसे प्लांट है, आप इन्हें क्या करते हैं? इनको सकुलेंट प्लांट्स बोलते हैं। इनमें बहुत ज्यादा वाटर और म्यूसिलेज होता है, इनमें पानी और चिपचिपा पदार्थ होता है, ये नहीं सूखते हैं, ठीक है। तो हम इन्हें फॉर्मेलिन, 4% फॉर्मेलिन या फॉर्मेलिन एस्टिक एसिड एल्कोहल जो है, इसके सॉल्यूशन में प्रिजर्व करते हैं और रखते हैं। क्लियर? दिस इज द one more step, which is the mounting on herbarium seed. Then mounting on herbarium seed, after this there is preservation. The specimen they are preserved with the 2% solution of mercury chloride. ये फंजीसाइड है बेटा, स्मैश पे इसके स्प्रे किए जाते हैं सीड्स पे। इसके लिए क्यूरेटर्स लगे होते हैं। जैसे आपने क्यूरेटर सुना होगा ना, कि क्यूरेटर वो आदमी होता है जो पर्टिकुलरली क्रिकेट पिच को क्या करता है, वो उसकी संभाल रखता है, उसको संभालता है। वैसे ही इनको संभालने के लिए भी क्यूरेटर्स होते हैं। हर्बेरियम क्यूरेटर्स आर देयर, लोग लगे होते हैं बहुत ज्यादा इसमें, और वे स्प्रे करते हैं इसमें स्प्रे पे, जिससे कि उसको फंजाई ना लगे और अदर तरह के कीट ना लगे। तो प्रिजर्वेशन किया जाता है। आफ्टर प्रिजर्वेशन देयर इज लेवलिंग। जब आपने इसको वेल प्रिजर्व कर दिया, it must be a level on the lower right hand corner of the particular sheet, ठीक है। जो लोअर राइट हैंड कॉर्नर, उस पर आपने देखा ही था कैसे किया था। सारी डिटेल्स मैंने लिखा है। द लेवल शुड इंडिकेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द लोकेलिटी, एल्टीट्यूड, हैबिट, डेट एंड टाइम ऑफ कलेक्शन. इवन द टाइम एंड डेट ऑफ कलेक्शन इज आल्सो नोटेड देयर. नेम ऑफ कलेक्टर, कॉमन नेम, कंप्लीट साइंटिफिक नेम, सारी डिटेल्स उसमें मैंने, और बोला कि प्लांट डिस्क्रिप्शन भी उसमें आती है। वो लेवलिंग किया जाएगा और उसके बाद बच्चों उसे स्टोर कर दिया जाएगा। जब आपने उसको प्रॉपर्ली ड्राई कर दिया, प्रेस कर दिया, आइडेंटिफाई कर लिया, माउंट कर दिया, और उसके बाद आप उसे क्या करेंगे, उसको एक वेल नोन जो आपका यूनिवर्सल सिस्टम ऑफ आइडेंटिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन है, जो इस केस में बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, उसके अंदर आप उन्हें अलमीराज में रख देते हैं। एंड दिस पर्टिकुलरली हर्बेरियम शीट्स आर देयर। अब हमें करना क्या होता है, आप एक नीचे पढ़े टाइप स्पेसिमेंस आर जनरली स्टोर्ड इन सेपरेट एंड सेफ प्लेसेस। देखिए क्या है, हम क्या करते हैं कि जब भी फील्ड में जाते हैं, जब हमने फील्ड विजिट जो पहला आपका स्टेप पढ़ा था, तब हम ऐसा नहीं कि एक ही प्लांट वहां से लाएंगे। वी टुक मोर देन वन प्लांट, कि कभी अगर एक प्लांट खराब भी हो जाए जो हमने हर्बेरियम सीड्स पे लगाया था, किसी गलती से अगर वो खराब भी हो जाए हर्बेरियम में, तो हमने उसके जो ओरिजिनल स्पेसिमेन है वो रखे होते हैं। इन ओरिजिनल स्पेसिमेंस को ही टाइप स्पेसिमेंस कहा जाता है। उनको हम सेपरेट प्लेस में और इसमें रखते हैं, जो दे आर स्टोर्ड सेपरेटली माय डियर फ्रेंड्स। द हर्बेरियम इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। इट हेल्प इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। आपने कोई प्लांट लिया, आप जाके हर्बेरियम सीड्स को देखेंगे किसी बड़े हर्बेरियम में, और आप चेक कर लेंगे कि क्या कैसा हर्बेरियम है। जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहां पे अपना हर्बेरियम है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन का, BSI आपने सुना होगा, शायद ना सुना हो, मैं आपको बता दूं बच्चों, देयर इज FRI देहरादून लिखा जाता है बेटा। FRI स्टैंड फॉर फॉरेस्ट, R stand for research, और I stand for institute, Forest Research Institute। तो यहां पे इनका अपना एक हर्बेरियम है, और बहुत बड़ा हर्बेरियम है नॉर्दर्न जोन में। मैक्सिमम जो टैक्सोनोमिक स्टडी है वहां पे कंपेयर किए जाते हैं प्लांट्स। ओके, हमने भी अपने प्लांट्स वहीं पे जाके कंपेयर किए थे एमफिल और PhD वर्क के लिए। सो इट मीन्स कि ये तो एक रेपोजिटरी बन गई, ये जमा होती हैं जहां पे चीजें, जो नॉलेज है अलग अलग रीजन्स की। इट सर्व एज अ रेपोजिटरी और स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज फॉर द फ्यूचर यूज, बाद में यूज कर सकते हैं। इट्स द क्विक रेफरल हाउस फॉर टैक्सोनॉमिस्ट्स। ये जो टैक्सोनॉमी में जो लोग काम करते हैं, जो टैक्सोनॉमिस्ट्स हैं, इनके लिए एक रेफरल हाउस है अपनी नॉलेज को कंपेयर करने के लिए,
उसके उनके पास हो। इट हेल्प इन स्टडी ऑफ फ्लोरा ऑफ द रीजन। किसी पर्टिकुलर रीजन का जो हर्बेरियम होगा उस रीजन के सारे फ्लोरा को, फ्लोरा मीन प्लांट्स को रिप्रेजेंट करता है, उसकी स्टडी आप कर पाएंगे। और प्लांट्स कौन कौन से हैं उनको पढ़ने से ये पता लग जाता है कि वहां पे इकोलॉजी कैसा है, वहां का वातावरण कैसा है। तो ऑल आर दीज आर द रोल ऑफ द हर्बेरियम। दिस इज द फर्स्ट टैक्सोनॉमिक एड वी आर डिस्कसिंग इन द पार्ट 1। द सेकंड टैक्सोनॉमिक एड इज बॉटेनिकल गार्डन्स। गार्डन ही नाम है, गार्डन गार्डन हो गया। तो बॉटेनिकल गार्डन क्या है बच्चों? गार्डन यू नो, नाम से बगीचा जिसे आप कहते हैं, ठीक है। गार्डन बोलने से ही आपके सामने एक पिक्चर आपके दिमाग में बन रही है, बिल्कुल एग्जैक्टली। कलेक्शन ऑफ द वेरियस लिविंग प्लांट्स स्पीसीज इन द फॉर्म ऑफ गार्डन फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस। रोज गार्डन चंडीगढ़ में है, वहां पे रोजेज हैं। पाम गार्डन, वहां पे पाम्स होंगे। सुना ना चंडीगढ़ में रोज गार्डन का बच्चों? तो ऐसे गार्डन आपके नजदीक में बहुत होते हैं, हम जाते हैं वहां पे, घूमते हैं, ठीक है। पर इसके साथ साथ जो टैक्सोनॉमिस्ट हैं वो वहां पे जाते हैं और स्टडीज करते हैं। मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ जो गार्डन होते हैं उनमें तो कुछ एक तरह के प्लांट, 50 या 100 तरह के, 100 या 200 तरह के प्लांट्स आपको मिलेंगे। और देयर आर लार्जर बोटेनिकल गार्डन्स विद देयर ओन हर्बेरियाज। उनके भी अपने हर्बेरियम हैं बोटेनिकल गार्डन के, जहां पे मिलियंस ऑफ स्पीसीज आर देयर, मिलियंस ऑफ स्पीसीज आर देयर फॉर द स्टडी। ये बड़े गार्डन्स हुआ करते हैं, ठीक है। और दीज आर द कलेक्शन, ठीक है। What are the botanical gardens here? These are the collection of the various living plant species in form of garden for identification purpose. वो गार्डन के रूप में लगाए जाते हैं। वहां पे रोजरीज अलग होंगी, पाम हाउसेज अलग होंगे, अलग अलग वो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वहां पे भी लगता है। ऐसा नहीं कि सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वहां नहीं लगेगा, वहां पे भी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन लगता है बच्चों। दिस इज टू बी नोटेड। सम ऑफ द एग्जांपल आर देयर। द लार्जेस्ट इन वर्ल्ड इज द रॉयल बोटेनिकल गार्डन एट क्यू। This one is the largest of the world. It's the Royal Botanical Garden. One view of it. This garden is here in front of you, my dear friends. The largest botanical garden, you should remember, it's the Royal Botanical Garden Kew, which is in London. London is there. Then, Indian Botanical Garden Havra, it is the largest in India. My dear friends, see here. It's the Indian Botanical Garden Havra, Calcutta. Particular जो place का नाम है वो शिवपुर कलकत्ता है, कलकत्ता में है। और इट इज द लार्जेस्ट वन। इट हैव अ सीनिक ब्यूटी, बहुत ज्यादा सुंदरता, अद्भुत सुंदरता वहां पे है, और ये लार्जेस्ट इन इंडिया है। इसके बाद वन मोर इज इंपॉर्टेंट इज देयर, और वन मोर थिंग इज देयर रिगार्डिंग दिस हावरास इंडियन बोटेनिकल गार्डन। इट हैव द ग्रेट वनियन ट्री विच इज स्प्रेड इन द 1.6 हेक्टेयर ऑफ द लैंड। सिंगल ट्री 1.6 हेक्टेयर भूमि में फैला हुआ है, और वो 250 ईयर्स ओल्ड है। और एक गिनीज जो बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है बेटा, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे ज्यादा कैनोपी इसी प्लांट का, सबसे ज्यादा फैलाव। कैनोपी मीन, मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं, इट इज कैनोपी। मैं यहां लिख देता हूं, इट इज कैनोपी। कैनोपी का मतलब होता है फैलाव। तो सबसे बड़ा जो फैलाव पौधे का है वो इसका, एंड इट इज रिकॉर्डेड इन द गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड, माय डियर फ्रेंड्स। So this is the botanical, one of the largest, it's the largest botanical garden in India. Or more important is there, it is at NBRI Lucknow, National Botanical Research Institute, which is at Lucknow. It's in the UP. So these are the botanical gardens. We use them as tools to study the plants. What are the role of the botanical gardens, my dear friends? Like they provide the plant material for taxonomic study. टैक्सोनॉमिक स्टडी के लिए प्लांट मटेरियल देते हैं। ये लोकल फ्लोरा को ग्रो करते हैं और मेंटेन करते हैं, बहुत बड़ा काम है इनका। रीजन की बात कर रहा हूं, कंट्री की बात कर रहा हूं। लोकल मीन एयर रीजनल एंड कंट्री वाइज इवन, क्योंकि जो क्यू में है प्लांट्स वहां पे जो है वो लंदन रीजन के या यूरोपियन रीजन के भी हो सकते हैं, जो यहां नहीं पाए जाते हैं। पर जो इंडियन रीजन के है वो इंडियन जो बोटेनिकल गार्डन है वो प्रिजर्व कर रहे हैं। तो मैं इसलिए लोकल वर्ड यूज कर रहा हूं। ग्रोइंग प्लांट फॉर द रिसर्च पर्पज, माय डियर फ्रेंड्स। देन प्रोवाइडिंग सीड्स टू रिसर्च सेंटर्स, बहुत जरूरी है। जो रिसर्च सेंटर है वे सीड्स के द्वारा प्लांट्स लगाते हैं, फिर उनको स्टडी करते हैं। ये भी काम किसका है? बोटेनिकल गार्डन जो है, दे विल प्ले देयर रोल इन दिस। तो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज द पार्ट 1 ऑफ द टैक्सोनॉमिक एड्स। वी विल स्टडी rest of the taxonomic aids in the part 2 in the next lecture.
टिल देन बाय टू ऑल ऑफ यू, सबको नमस्कार, थैंक्स अ लॉट।